Hindi and English, na? So, good morning. Last time we have seen how you can have the commissioning of any refrigeration plant or a chiller. Today we are going to discuss about the operation and routine maintenance of the air conditioning systems. So, before you start any plant, this we have seen in the commissioning also, you have to ensure that all the walls in the refrigeration systems are open. Where we have the walls in the refrigeration system, like you have condenser water walls, you have chiller water walls. In copper lines, you may be having wall at the condenser outlet. There may be a ball wall at the condenser outlet. Maybe there are walls at the compressor outlet also. When it is a case of the big compressor, 100 TR or something more than that, we are having the walls at the suction as well as discharge of the compressor. So you have to always ascertain that your all the walls are open. Okay. Second thing is that you have to see that there is a sufficient water supply to cooling tower and makeup water system as well as in the chiller. Let me tell you one example. What has happened? This was a real case study. There is a company at what you call near Pune Ranjangaon, a big company. I will not name the thing, name the company. But what has happened on the Saturday evening? They had emptied all the water from the chiller systems. चिलर साइड में जो भी पानी था उन्होंने निकाल दिया. ओके, पानी निकाल दिया और नया पानी फिलअप किया. But they have not ensured that there is a no airlock in the system. Whenever you are emptying the chiller or a condenser, you have to always check whether there is a airlock in the system, because whenever you drain the water from any vessel or any pipe, the air will automatically enter into that. And once there is a air, and once you again restart the motor, the air cannot get compressed, so it will occupy the space, and that will suffer your condenser or a chiller from the water. So what had happened, since they have not checked whether it is a airlock or not, on the Monday morning when they started the chiller was having airlock in the water line. So what has happened, it has I mean whatever they have started, nobody has listened to the airlock, and the chiller was failed. All there was a ice formation in the chiller. Why this has happened? This has happened just because there was not sufficient water flowing inside the chiller. So whenever you start the chiller or anything, there are always gauges mounted on the inlet and outlet of the chiller. So you have to see that those gauges are not shaking, that the water uska jo pointer hai wo हिल नहीं रहा है. There should be a steady water flow. Whatever the pressure it is showing, it has to be a steady water, though that pointer should not be in a dancing condition. It should be steady. So if it is a steady, it means that there is no air in the water circuit. So please remember this more important thing. This is more important thing you have to always remember. Whenever you empty anything and put the water back, you have to ascertain that you can release the air from the system. So if you check for the big installation, there are always air purge wall are provided within that piping. Air purge wall will be always installed in the piping at the highest point. So whenever you start the chiller, any water circuit is on, whatever air is there, air will always tend to go to the top, okay, or top of that circuit. So that air will get escaped through that air release wall. So air release wall is hardly costing 1,000 rupees per wall. So if you put it, you can save more. More on the chiller side. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई चीज को एम्प्टी करते हो वेसल को, तो ऑलवेज यू शुड have the sufficient water filled again in the system. Then you have to check for makeup water also. Most of the times what happens, आपने कूलिंग टावर को एम्प्टी कर दिया, okay,
बट अभी कूलिंग टावर को एम्प्टी कर दिया, मे बी कूलिंग टावर, दैट पर्टिकुलर वाटर टैंक ऑफ द कूलिंग टावर मे बी कंटेनिंग अराउंड 5 स्क्वायर मीटर क्यूबिक मीटर ऑफ द वाटर, मे बी 5 KL ऑफ द वाटर. तो उतना वाटर आपके मेकअप टैंक में होना चाहिए. एंड दिस मेकअप टैंक शुड बी ऑलवेज फुल in spite of the in spite of the any day of the week. संडे होगा तो भी आपकी टैंक फुल होनी चाहिए, मंडे होगा तो भी आपकी टैंक फुल होनी चाहिए. बिकॉज अगर आपका टैंक में पानी नहीं आ रहा है कंडेंसर में, क्योंकि कंडेंसर के लाइन में क्या होगा, वेन एवर you are running the cooling tower, there is always some water loss due to evaporation and evaporation होता है, और वो जो भी मतलब लॉसेस होता है दैट हैज टू बी रिकवर्ड. तो उसके लिए अगर पानी मिलेगा नहीं तो आपका जो वाटर लेवल है कूलिंग टावर का वो कम हो जाएगा. एंड देन एट वन पॉइंट यू आर, बिकॉज देर इज नो सफिशिएंट वाटर, योर मशीन विल स्टार्ट ट्रिपिंग ऑन द HP. Okay, so you have to always ensure that whatever makeup water tank you have provided, it should be full. Then there is a makeup water tank, or you can say expansion tank, provided into the chilled water circuit. Nowadays what people do, earlier we used to go for hot water and cold water circuit. Nowadays what they do, they put one expansion tank at the topmost part of the chiller, and if there is any loss of the chill water during the flow, so that is make up with that expansion tank water. So again you have to see that expansion tank जो भी आपने लगाया चिलर सर्किट में, चिल वाटर सर्किट में, it should be always full. For no any reason it should be emptied. अगर वो एम्प्टी हो गया है तो आपको चिलर बंद करके आपको देखना पड़ेगा उसमें क्या दिक्कत आ रही है. Otherwise, if it gets empty, the chances are that your whole chiller will go out of order, because there are chances that if water is not there sufficient, the chiller will make the ice inside the shell and tube chiller, and once that ice is formed, whole chiller will get out of order. अगर उसमें पानी जाएगा क्या होगा, आइस होगा तो ट्यूब लीक होगा तो क्या होगा, जो वाटर है वो पूरा अपना गैस सर्किट में चला जाएगा, कंप्रेसर में चला जाएगा. ठीक है, वहां पे आपका सक्शन LP स्विच होगा, लो प्रेशर स्विच होगा, वो एक्टिवेट करेगा, लेकिन क्या होगा, वो खाली मशीन को बंद करेगा. अभी देखिए पानी का जो प्रेशर है दैट इज हार्डली 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वेयर एज यूर गैस प्रेशर इज, अगर इक्वलाइज प्रेशर आप देखने जाओ R22 का हम लोग बात करते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट 10 kg. सो इवन इफ यू स्टॉप द चिलर, even if you stop the air conditioning system, all the gas will get escaped to the water side, because water side there is a 2.5 kg and this gas side there is a 10 kg of pressure, even if the system is at standstill. So whatever gas is there, it will get leaked out, and once gas is leaked out, the water will enter into the system. It might enter into the compressor, and nowadays if you see, most of the compressors are semi hermetic only, means there is a motor inside. So what happens, this water will enter into the motor and whole system has to be thrown away. Okay, so you have to take care that whatever expansion tanks are there, makeup tanks are there, those are always full. Next thing sorry next thing what you have to do is that you have to check that all air filters and water strainers are clean. What happens when you start system initially हम लोग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा कचरा सिस्टम में आ सकते हैं, बिकॉज ऑल द थिंग्स वेर ओपन बिफोर यू स्टार्टेड. ओके, आपका डक्टिंग का शीट खुला पड़ा था, आपने इसको डक्टिंग कर लिया, फिर डक्टिंग एक साथ तो जोड़ा नहीं उसने, कुछ दिन वो आधा डक्टिंग जोड़ दिया, आधा डक्टिंग खुला रहा, तो उससे कचरा आ सकता है डक्टिंग में. तो ये सब कचरा आके किधर सेटल होगा, एयर फिल्टर में. सो एयर फिल्टर को भी आपको देखना है कि फ्रीक्वेंटली क्लीन करना है. जब आप सिस्टम स्टार्ट करते हो फ्रीक्वेंटली एयर फिल्टर को क्लीन करना है. वैसे इन द सेम केस विद द वाटर स्टेनर को भी आपको बार बार क्लीन करना है, क्योंकि क्या होता है, शुरू में जब आप वाटर फ्लो करते हो तो वेल्डिंग के कोई मतलब ग्रैन्यूल्स रहते हैं उसमें, सो दोज ऑल विल गेट
collected into the water filter. तो जो भी आपने स्टेनर लगाया, फिल्टर लगाया, तो उसको आपको बार बार क्लीन करना पड़ेगा. ओके, वंस एक बार फिर एक 4-5 बार क्लीन कर दिया, फिर आपको मालूम पड़ता है उसका चोक होने का ये क्या है, लेवल क्या है, तो उस हिसाब से फिर आप उसके बाद नहीं क्लीन करेंगे तो चल सकते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट बात सॉरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, when you are starting the system, when you are starting the system, you have to ensure that all the doors and windows of air conditioning room are closed. बहुत बार क्या होता है, अभी जब भी बड़ा बड़ा कोई हॉल है या बड़ा ऑफिस है, पीपल, कई लोग जो ऐसे रहते हैं उनको एयर कंडीशनिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है. ओके, सो दे विल ऑलवेज प्रीफर टू हैव अ फ्रेश एयर, दे विल ऑलवेज प्रीफर टू कीप द विंडो ओपन, और वो बोलेंगे हमको ये ठंडा हवा नहीं चाहिए, हमको मतलब फ्रेश एयर चाहिए. सो यू हैव टू इंश्योर देम दैट कि फ्रेश एयर अरेंजमेंट इज ऑलरेडी देयर विद द एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड दे कैन क्लोज दैट पर्टिकुलर विंडो. क्योंकि बहुत सारे लोग हमने देखा है, वी आर वर्किंग विद वन ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज इन नासिक ओझर, देयर वी हैव सीन, अगर 100 लोग रहते हैं उसमें से 5 लोग तो ऐसे रहते हैं कि जिनको एयर कंडीशनिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है. So they are always opposing us to close the window and all that. Okay. Second, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमने देखी थी, क्रैंकेस जो है, क्रैंकेस का हीटर जो है कंप्रेसर का, बिफोर यू स्टार्ट द सिस्टम और व्हेनेवर योर कंप्रेसर इज ऑफ, योर क्रैंकेस हीटर शुड बी इन ऑन कंडीशन एंड यू हैव टू ऑलवेज इंश्योर इट बाय टचिंग द सरफेस ऑफ द हीटर. ओके, जब भी हम लोग, हमारा एसी का कंप्रेसर बंद रहता है, तभी आपका क्रैंकेस हीटर जो है कंप्रेसर का वो चालू रहना चाहिए. इसके लिए क्या होना है, जब भी आपने एसी प्लांट बंद भी किया तो भी आपके प्लांट का जो मेन जो स्विच है वो ऑन रहना चाहिए, so that always there will be a supply available for the crankcase heater and heater will be always in a on condition. Then one more important thing that what you have to check is that there should be a proper voltage supply जो आपका है वो proper होना चाहिए. I will tell you one case which has happened with me. We have supplied one scroll chiller to one of the companies in Pune. Okay, so we have carried out all the piping, cooling tower piping, what you call this chilled water piping. We have installed cooling tower, all that we have installed, and we were in the commissioning phase. So earlier day we have started chilled water circuit and we have checked whether there is no airlock in the system. Again we have started condenser water system. We have checked for all the stainers for choke up and all that, the rotation of the fan and all the things we have ensured. The next day we tried to start the compressor. The compressor was not getting start. We have checked the voltage. We found that whenever we try to start the compressor, the voltage goes well below 400 volt. So we told according to the maintenance manager over there, he has refused to accept the fact that there is some voltage problem. He was telling me we are having machines in our company which are having more than 150 HP of the motor. This much big motor is not having a problem. Why you are so small motor? We have given them hardly 26 TR capacity scroll chiller. So there were two compressors. One was carrying 13 TR capacity. Means hardly it was carrying 16 HP compressor per unit. So it was not getting start. So हमने उनसे GM से बात किया कि सर ये ऐसा ऐसा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और GM ऑल्सो मतलब वो हमारी बाजू नहीं लिया, वो बोला नहीं हमारा सब बराबर है. देन वी हैव रिक्वेस्टेड देम कि हम लोग जनरेटर पे स्टार्ट करेंगे और आपका जब भी बाकी का लोड नहीं है, मे बी देयर कंपनी वेयर क्लोजिंग एट 4 PM. दैट टाइम वी विल स्टार्ट जनरेटर and we will check. So he has agreed on that. So at 4 PM in the evening we wait for whole day. At 4 PM in the evening we have all the load on the machines were off.
Okay, all the factory was off, and then we started to run the chiller with the DG on. What happens whenever you are running a DG, you get a accurate voltage supply. आपका जो एमएससीबी का सप्लाई है वो हो सकता है कम ज्यादा हो, लेकिन डीजी में देर इज अ अरेंजमेंट, यू कैन हैव द एक्यूरेट वोल्टेज सप्लाई ओवर देयर. तो हमने भी उसको चालू किया एंड देन वी शोन देम कि ये कंप्रेसर चल सकता है प्रोवाइडेड यू गिव इट अ प्रॉपर वोल्टेज. नॉर्मली क्या होता है, ये जो हमारे स्क्रॉल कंप्रेसर है, दोज आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. Those are either manufactured maybe by the Emerson in USA or maybe in China, but as per Emerson specification. So they are carrying a voltage of 415 plus and minus 1%. हमारे इंडिया में क्या होता है, वी ऑलवेज वोल्टेज जो हमारा स्पेसिफाई करते हैं, हम लोग 440 प्लस माइनस 10% बोलते हैं. Whereas for the scroll compressor you require 415 plus minus 1%. So if you give this particular voltage to the scroll compressor, they will run smoothly. If you try to give voltage more than this, they will take more current or they will not work properly. So always remember is we have a scroll compressor and a screw compressor. Reciprocating compressor almost they have become absolute in the technology. So whenever you are dealing with a scroll compressor or a screw compressor, you have to always see that your voltage is between 415 plus minus 1%. मीन्स 415 मतलब 395 से लेके आपको 445 इसके बीच में आपका वोल्टेज है. जितना आप नजदीक रखोगे वोल्टेज, उतना मशीन के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा. सो दिस थिंग शुड बी keep in mind, and you see whenever you are trying to run a new chiller, you have to always ascertain that there is a proper voltage available. Then सबसे important बात, there should be a proper earthing also. हम लोग क्या करते हैं, हमारे इंडियन स्ट्रेटेजी ऐसा है, हम लोग एक कोई तार लगा लेते हैं और हो गया अर्थिंग, ऐसा होता है. बट वेन एवर यू आर डूइंग अर्थिंग, इट शुड बी डन बाय द प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर. जो पीडब्ल्यूडी के सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, उन्होंने उसका अर्थिंग करना चाहिए. क्योंकि क्या होगा, अर्थिंग हमने किसके लिए लगाया कि इन केस ऑफ इमरजेंसी इफ एनी मोटर गेट्स शॉर्ट, तो जो भी उस मोटर का करंट रहेगा वो पूरा करंट अर्थिंग के थ्रू अर्थिंग में पास होना चाहिए. अगर हमने मान लो 100 टन का कंप्रेसर है और उसको एक 16 गेज की अर्थिंग की तार लगाई एज अ अर्थिंग, सो व्हाट हैपन टुमारो इफ 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 इट रियली हैपन्स कि उसको वो मोटर शॉर्ट हो गई, तो क्या होगा, वो जो तार रहेगी बारीक तार, वो मेल्ट हो जाएगी उतने करंट से. because whenever there is a short you will have a current 10 times of the normal current. अगर वो मोटर का करंट अगर 100 करंट पे चल रहा है मोटर, मान लो 100 एचपी का, तो इट विल कैरी अ करंट ऑफ 1000 एम्पियर. तो 1000 एम्पियर करंट अगर छोटे से तार में निकल जाएगा तो वो तार पिघल जाएगी और प्रॉब्लम वही के वही रह जाएगा. किसी आदमी को उसको शॉक लग सकता है, आदमी वहां पे मर सकता है. तो इसके लिए हम लोग जब भी अर्थिंग लगाते हैं, यू हैव टू गेट इट डन बाय द एक्सपर्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. और कभी भी इलेक्ट्रिकल में ध्यान रखो, आपको अगर किसी ने बताया कि चलो 3 mm थिक का अर्थिंग लगाना है, तो बेटर इफ यू पुट 5 mm थिक अर्थिंग. सो डोंट कट ऑन द साइजेस व्हेन समबडी हैज स्पेसिफाइड यू. कॉस्ट के लिए उसको ये करना नहीं है, क्योंकि ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट आपको रिकवर हो जाएगी, लेकिन अगर किसी की जान चली गई तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. फिर वो बहुत बड़ा मैटर हो जाता है, किसका गया, क्यों गया, फिर उसको जुर्माना जो भी मतलब उसको नुकसान भरपाई जो भी देना पड़ता है, दैट इज वेरी कॉस्टली देन द इक्विपमेंट. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू स्पेंड ऑन द इक्विपमेंट्स इंस्टेड ऑफ एक्सीडेंट्स. So now we'll see how can you start and stop the chiller. Okay. तो अभी मेरे को कोई बताएगा, if all are on the line, tell me if there is a chiller, there is a condenser water, there is a chilled water, there is a AHU, which thing should be started first? Anybody can reply me? Hello? Hello? Hello?
येतोय सर. अरे हाँ हाँ, अभी आपके पास 5 चीजें हैं. एक तो है चिल्ड वाटर प्लांट, एक है कूलिंग टावर का सर्किट, एक है चिल्ड वाटर का सर्किट, एक है एयर हैंडलिंग यूनिट, और एक है आपका कूलिंग टावर का फैन. अब ये 5 चीज में से पहला चीज कौन सा स्टार्ट करोगे आप अगर चालू करना है तो? मेरा सवाल समझ में आ रहा है क्या? हेलो, से यस और नो. जवाब बाद में देना, लेकिन मेरा सवाल समझ में आ रहा है क्या? क्या मैं दूसरे तरीके से पूछूं? हेलो सर हा? सर्किट चालू कर. कुठचं सर्किट? तेच मी विचार, पाचापैकी कोणतं सर्किट? 5 जो मैंने बताया उसमें से पहले कौन सा करोगे और बाद में कौन सा करोगे? सर पहले वाटर का, चिलिंग वाटर. चिल वाटर का सर्किट चालू करेंगे. उसके बाद हाँ सर. बताओ गलत भी हुआ तो भी आई विल करेक्ट इट, नो प्रॉब्लम, बट यू जस्ट ट्राई टू रिप्लाई. उसके बाद क्या करोगे? चिल वाटर का सर्किट चालू किया, उसके बाद हेलो, सबसे पहले एचयू चालू करना है आपको. ओके, उसके बाद वाटर लाइंस पे आना है, चिल्ड वाटर सर्किट चालू करना है, कंडेंसर वाटर सर्किट चालू करना है, कूलिंग टावर का फैन चालू करना है. और ये सब चालू करने के बाद कम से कम 5 मिनट रुकना है. जैसे मैंने बताया स्टार्ट ऑफ द लेक्चर कि आपको ये एसेटन करना है कि वो कोई सर्किट में हवा तो नहीं बैठी हुई है, जैसा एयरलॉक नहीं हुआ है, वो आपको एसेटन करना है. नहीं तो क्या होगा, एयरलॉक होगा तो आपको आगे जाके दिक्कतें पैदा होगी. तो इसके लिए आपको ये सब चीज चालू करके कम से कम 5 मिनट रुकना है. उसके बाद लास्टली आपको चिलर चालू करना है. करेक्ट. और अभी बंद करने के टाइम पे क्या करोगे? विच थिंग शुड बी स्टॉप फर्स्ट? हेलो चिलर पहले बंद करोगे. ओके. अभी देखो क्या होता है, बहुत बार आपने देखा होगा कि व्हेनेवर देयर इज अ थिएटर. अभी 2 साल तो हम लोगों ने थिएटर देखा नहीं, बट मान के चलते आपने थिएटर तो देखा होगा, मूवी वगैरह देखा होगा. व्हाट दे आर डूइंग, शो मान लो अभी 9 से 12 का शो है शाम को, तो व्हाट दे विल डू, दे विल स्टार्ट द चिलर एट 8 PM. शो से पहले 1 घंटा चालू करेंगे. तो बाय द टाइम द पीपल कम फॉर द 9 o'clock शो, तो देयर विल बी चिल्ड एयर इनसाइड द थिएटर. सो इंटर होने के बाद मान लो 9 से 12 का शो है, तो 11 बजे वो लोग क्या करेंगे, चिलर को बंद कर देंगे, चिलर और कंडेंसर वाटर को बंद कर देंगे और चिल्ड वाटर को खाली चालू रखेंगे. क्यों चालू रखेंगे? क्योंकि चिल्ड वाटर का जो भी टेम्परेचर है उससे आपको बहुत सारा कूलिंग मिल सकता है. एचयू चालू रहेगा और चिल्ड वाटर सर्किट चालू रहेगा. तो थोड़ा सा दे आर ट्राइंग टू सेव देयर एनर्जी. क्योंकि क्या होगा, हमने 12 बजे अगर बंद कर दिया तो चिल्ड वाटर विल बी स्टिल कूल इन कूल कंडीशन. तो वो ऐसा रहेगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर को उसका हीट ट्रांसफर हो जाएगा और वो वेस्ट हो जाएगा. तो इसके लिए क्या करते हैं कि 11 बजे वो चिलर को बंद कर देते हैं और अगला 1 घंटा चिल्ड वाटर के ऊपर ही उसको चलाते हैं. तो चिल्ड वाटर थोड़ा गर्म भी हो जाएगा, लेकिन रूम में आपके टेम्परेचर मेंटेन होगा. आपने बहुत जगह ऐसा देखा होगा जहाँ पे भी ऐसे भीड़ का एरिया रहता है, वहां पे क्या करते हैं, 1 घंटा पहले चिलर को चालू करते हैं. जैसा भी कोई ऑफिस है, समझो बड़ा कोई ऑफिस का एरिया है पुणे में, जैसे हिंजवड़ी है, जो भी है, 9 बजे अगर आपका ये चालू होने वाला है ऑफिस, so they will start the chiller at 8 o'clock. So what happen, by the time people come at 9 o'clock in the office, there will be all comfort condition inside the office. Okay. और बाद में शाम को मान लो 5:30 बजे आपको बंद करना है, तो मे बी they will be closing their chiller. They will shut off the chiller at 4:30 and there will be chill water running and it will still maintain the temperature. Okay. अभी हमने चालू करने का प्रोसीजर देखा, लेकिन चालू करने के बाद हमने क्या क्या देखना चाहिए. ओके, आपने चिलर को चालू कर दिया, अभी उसके बाद क्या क्या देखना चाहिए. हो सकता है ये सब चीजें आपका ऑपरेटर करेगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए. बीइंग एन इंजीनियर यू शुड नो
व्हाट योर ऑपरेटर शुड डू एंड व्हाट ही शुड नॉट डू। तो उसके बाद क्या क्या करेगा वो, एचयू ऑन किया, कंडेंसर ऑन किया, कूलिंग टावर का फैन ऑन किया, कंप्रेसर ऑन किया, उसके बाद क्या करना चाहिए, अभी कंप्रेसर तो चालू हो गया तो उसने क्या करना चाहिए, कंप्रेसर का ऑयल प्रेशर चेक करना चाहिए। ऑयल प्रेशर कंप्रेसर, हाँ, क्योंकि कंप्रेसर हेल्दी चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये आपको ऑयल प्रेशर से पता चलेगा। सेकेंड, व्हाट इज द रेटेड करंट ऑफ द कंप्रेसर, उसका जो भी आपको कमीशनिंग इंजीनियर ने रेटेड करंट दिया होगा कि भैया ये लेवल पे ये इतना एम्पियर कंप्रेसर लेना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली वो पूरा आपके दिए हुए इसके हिसाब से चल रहा है कंप्रेसर या नहीं चल रहा है, दैट यू हैव टू ऑलवेज इंश्योर। हो सकता है अभी जैसा स्टेपलेस लोडिंग होगा तो जब भी जो स्क्रू कंप्रेसर रहते हैं वो ऐसा तुरंत लोड पे नहीं जाते, दे विल स्टार्ट एट 20%, 20-25% लोड एंड एज द टाइम मूव्स अहेड दे विल गेट लोडेड। तो फुल लोड करंट उसका आपको स्पेसिफाई करके दिया होगा तो वो हिसाब से वो करंट लेता है कि नहीं वो आपको देखना पड़ेगा। इफ देयर इज एबनॉर्मल नॉइज इन द कंप्रेसर दैट आल्सो यू हैव टू लुक आफ्टर। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कंप्रेसर के बॉडी का टेम्परेचर क्या चल रहा है, कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, ये आपको सब आपके कमीशनिंग इंजीनियर ने बताया होगा। आज हम लोग वो देखते हैं ना कॉन्टैक्टलेस वो लेजर गन रहता है, उससे हम लोग टेम्परेचर नाप सकते हैं। Initially it was very difficult to check the temperature of any surface, hot surface. So now you can easily with the help of laser gun you can make out what is the temperature going on. तो आपका डिस्चार्ज टेम्परेचर काउंट करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है और वो ये रहना चाहिए। फिर सक्शन टेम्परेचर, सक्शन लाइन का टेम्परेचर, ये सब जहाँ पे जैसे अपना डॉक्टर चेक करता है तो एवरी पार्ट ऑफ द सिस्टम यू शुड नो व्हाट इज द प्रेशर एंड टेम्परेचर गोइंग ऑन। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि देयर आर अराउंड 25 पैरामीटर्स, डिफरेंट पैरामीटर्स विच यू शुड नो व्हेन यू आर रनिंग any system, and that if they are within the parameter or within the limit then you can certify that the system is okay. Otherwise if they are not within the given limit you will always have some problem with the plant. सेकेंड थिंग आपको क्या देखना है, ऑयल लेवल तो एक है, फिर डिस्चार्ज प्रेशर को भी आपको देखना है। डिस्चार्ज प्रेशर आपका सही चल रहा है बिकॉज डिस्चार्ज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, I mean current of the compressor is directly proportional to discharge pressure. अगर आपका डिस्चार्ज प्रेशर हाई जा रहा है तो आपका करंट भी हाई जाएगा। सो आपको वो देखना है अगर डिस्चार्ज प्रेशर हाई जा रहा है तो क्यों हाई जा रहा है, इज देयर सफिशिएंट वाटर, इज देयर फैन मूविंग, फैन का रोटेशन सही है नहीं है, ये सब चीज आपको देखनी है। फिर अभी आप अगर एसी रूम में जाओगे तो आपको जब भी हम लोग शुरू में बात कर रहे थे आपको हर एक ग्रिल का टेम्परेचर मेजर करना है, या तो एचयू इनलेट आउटलेट टेम्परेचर मेजर करना है या हर एक ग्रिल का टेम्परेचर मेजर करना है। तो अगर एचयू इनलेट आउटलेट अगर आप देखने को जाओगे, चिल वाटर अगर लगाया हुआ है एचयू में, तो व्हाट विल बी द टेम्परेचर रफली एट द इनलेट एंड आउटलेट, कैन एनीबडी टेल मी? एचयू के इनलेट और आउटलेट में अगर सिस्टम सही चल रहा है तो क्या क्या टेम्परेचर होने चाहिए हवा के, एयर के? हेलो हेलो, अरे बोलिए, एचयू इनलेट और आउटलेट में क्या टेम्परेचर होने चाहिए हवा के इफ द सिस्टम इज रनिंग ओके? हेलो, नहीं सर, आइडिया नहीं। अभी इनलेट ऑफ द एचयू विल बी द रूम टेम्परेचर, तो हम लोग मान के चलते हैं 24 डिग्री आपका रूम टेम्परेचर है, 24 डिग्री है, 26 डिग्री है, वो इनलेट होगा एचयू का, और आउटलेट जो होगा वो लगभग 14-15 डिग्री होगा, क्योंकि आप 7 डिग्री का चिल्ड वाटर डाल रहे हो एचयू के कॉइल में, तो आपको जो आउटलेट टेम्परेचर मिलेगा एचयू से दैट विल बी अराउंड 14 और 15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? तो ये सब चीज है ना, आपको एक बार चिलर के पास जाके देखेंगे तो ही मालूम पड़ेगा। जस्ट बाय मतलब ये ऐसा थियरी में ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली भी कभी मेजर करना पड़ेगा या कोई चिलर प्लांट को विजिट करना पड़ेगा। ओके, फिर आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपका कूलिंग टावर का तबीयत ठीक है कि नहीं वो देखना है। कूलिंग टावर का जो वेटबल अप्रोच रहता है वो इम्पोर्टेंट बात है। वो वेटबल अप्रोच है, इट शुड बी मैक्सिमम 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड।
अगर उससे वो ज्यादा आ रहा है तो हो सकता है कि आपका कूलिंग टावर बराबर काम नहीं कर रहा है. ओके, सॉरी, आज मेरा तबीयत थोड़ा खराब है इसके लिए. फिर और क्या रह गया, ये जो भी आप रीडिंग ले रहे हो, एवरी आवर्स देयर शुड बी अ रीडिंग टेकन एंड इट शुड बी नोटेड इनटू द लॉग बुक. क्योंकि मान लो आपने कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया प्लांट और आपको फिर कंप्लेंट आया कभी 1-2 महीने के बाद, तो आप लॉग बुक देख के आपको मालूम पड़ेगा कि कंप्लेंट क्यों हो रही है और किस पार्ट में, सिस्टम के कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है. दैट लॉग बुक विल वर्क एज अ केस पेपर फॉर अ पेशेंट. जैसा डॉक्टर के पास आप देखोगे आपका केस पेपर रहता है वहां पे, तो आप अगली बार जब भी जाते हो तो डॉक्टर वो आपका पुराना केस पेपर या फाइल जो भी है वो निकाल के देन ही विल चेक यू. Like that, whenever you have a problem with a chiller, you have to go and refer logbook first. That logbook will give you clear idea कि मशीन के कौन से पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है या हो रहा था जिसके कारण मशीन बंद पड़ गई. तो कोई ऐसा, मान लो कोई डिस्चार्ज टेम्परेचर है तो उसका ऐसा बढ़ता हुआ ट्रेंड दिखेगा आपको. कोई पैरामीटर है वो जो पर्टिकुलर स्टेडी होना चाहिए वो ऐसा डिक्लाइनिंग दिखेगा, तो उससे आप मालूम पड़ेगा आपको कि मशीन के कौन से पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है. ओके, तो ये थी सब आपकी ऑपरेशन के बारे में. अभी चलते हैं हम लोग रूटीन मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं. रूटीन मेंटेनेंस क्या होना चाहिए कोई भी चिल्ड वाटर सिस्टम का या एयर कंडीशनिंग प्लांट का, क्या क्या होना चाहिए, कौन बताएगा मेरे को? रूटीन मेंटेनेंस क्या होना चाहिए मशीन में? अच्छा, स्प्लिट एसी का बताओ, रूटीन मेंटेनेंस क्या होना चाहिए. चलो छोड़ दो चिलर का, स्प्लिट एसी का बताओगे तो भी आपको इजी रहेगा वो मालूम करने में. बताओ क्या होना चाहिए. हेलो, स्प्लिट एसी का रूटीन मेंटेनेंस क्या होना चाहिए? सर सप्लाई वायरिंग, आउटडोर यूनिट क्लीनिंग करेक्ट. इंडोर यूनिट का फिल्टर. करेक्ट. तो यही चीज अपने को बड़े प्लांट में करनी है, बराबर है. सेम थिंग यू हैव टू कैरी आउट फॉर अ बिगर प्लांट. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको, अगर हम स्प्लिट एसी का बात करें तो आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है रूटीन मेंटेनेंस में, आपको एयर फिल्टर क्लीन करना है, बराबर है. हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली कस्टमर को दिखा देते हैं कि हर 15 दिन में उसने वो एसी का फिल्टर निकाल के उसने पानी के नीचे पकड़ के क्लीन करना है और ड्राई होने के बाद एसी में लगाना है. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो फिल्टर है वो बार बार चोक होगा क्योंकि उसके रूम में कोई डस्ट रहेगा. वो चप्पल हम लोग रूम के अंदर लाते हैं उसकी कोई डस्ट रहती है, कोई खिड़की खुली रहती है तो हवा का डस्ट आता है और ये सब जाके सेटल किधर होता है, तो इंडोर एयर फिल्टर में. तो आपको एयर फिल्टर जो है, जैसे हमने स्प्लिट एसी के बारे में बात किया इंडोर का एयर फिल्टर, वैसे अगर बड़ा चिलर है तो उसके एयर हैंडलिंग यूनिट के सब फिल्टर अपने को क्लीन करना है. मे बी उसका क्लीनिंग का फ्रीक्वेंसी आपको डिसाइड करना है, हर 8 दिन में, हर 15 दिन में, हर महीने में, डिपेंडिंग ऑन द ब्लॉकेज ऑफ द फिल्टर. अभी कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत सारा डस्ट है तो मे बी यू विल रिक्वायर टू क्लीन दैट फिल्टर एवरी वीक ऑल्सो, हो सकता है. तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो आपको एयर फिल्टर क्लीन करना है. सेकंड क्या करना है, तो आपको लीक टेस्ट करना है. जो भी आपके सर्किट है, अभी स्प्लिट एसी में क्या है, देयर आर हार्डली 2 जॉइंट्स. ओके, जो भी आपके फ्लेयर जॉइंट्स रहते हैं, तो लेकिन उसको लीक टेस्ट करना जरूरी है. अगर आपका कोई बारीक लीक रहेगा तो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑन द गैस. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, if that particular point is leaking, the one day all the gas will get exhausted and you have to pay maybe 2000 or 3000 rupees for the repair of that particular AC. तो लीक टेस्टिंग करना ये बहुत जिम्मेदारी का काम है और बहुत इंपॉर्टेंट काम है कोई भी प्लांट के लिए. अभी मान लो 100 टन का प्लांट है तो उसमें करीबन 140 kg ऑफ गैस रहेगा. अगर गैस का कॉस्ट देखोगे, अभी तो ये क्राइसिस चल रहा है 134 का, सो यू आर नॉट गेटिंग अ 134 गैस एट लेस देन 1200 रुपीज ऑल्सो. सो यू कैन इमेजिन, अगर 140 किलो गैस अगर आपको भरना पड़ा सिस्टम में तो आपको जेब से कितना पैसा जाएगा.
ओके, सो ऑलवेज छोटा लीक जब भी होता है, जब भी उसको स्टॉप करने में ज्यादा समझदारी है। ओके, हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, लेकिन छोटा लीक होगा तो स्टॉप करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो पूरा अगर गैस चला गया तो आपके जेब को बहुत सारा फटका बढ़ सकता है। सो ऑलवेज यू हैव टू सी दैट you are leak carrying out the leak testing whenever always there is a service call for that particular system। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई भी एसी को कम से कम 4 सर्विसेज पहले साल में देनी पड़ती है अपने को वारंटी के अंदर। सो यू हैव टू इंश्योर दैट whenever you go there for service any plant you have to carry out the leak test। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बड़े मशीन में आपके वाटर पंप के जो ग्लैंड रहते हैं ना वो बहुत बार लीक रहते हैं। अभी हम लोग तो क्या है आजकल जो भी हम लोग चिल्ड वाटर या कंडेंसर वाटर के लिए जो भी पंप लगाते हैं वी आर ऑलवेज यूजिंग मैकेनिकल सील टाइप पंप, बट देयर आर स्टिल इंस्टॉलेशन अवेलेबल इन द मार्केट जहाँ पे वो लोग ग्लैंड वाले वाटर पंप यूज करते हैं। ग्लैंड वाले जो वाटर पंप रहते हैं उसकी कॉस्ट लगभग 3 से 5 हजार रुपया कम रहती है with respect to the mechanical seal pump। So I will suggest you always to go for a mechanical seal pump, क्योंकि a single drop water is also having a cost। अगर आपका चिल्ड वाटर का ड्रॉप अगर लीक हो रहा है तो चिल्ड फॉर प्रोड्यूसिंग चिल्ड वाटर 1 लीटर ऑफ चिल्ड वाटर प्रोड्यूसिंग विल कॉस्ट यू 4 रुपीज। सो अगर वो आपका ग्लैंड में से लीक हो रहा है चिल्ड वाटर तो आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है, आपको बोलो या आपके कस्टमर को बोलो। सो ऑलवेज यू ट्राई टू यूज the mechanical seal pump so that there is no leaking of water from the gland। then आपको वो भी देखना है कि वाटर स्टेनर जो भी है वो आपके साफ होने चाहिए, क्योंकि चलने के बाद जैसे मैंने बताया एयर फिल्टर को आपको 15 दिन में एक बार क्लीन करना है, वैसे वाटर के स्टेनर को भी आपको में भी 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार आपको क्लीन करना है। ओके, और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जब भी आप क्लीन करते हो उसका जो मेश है जो भी कैटरेज है वो फिल्टर कैटरेज वो आपको सही तरीके से लगाना है। बहुत बार क्या करते हैं लोग वो कैटरेज को निकाल देते हैं या उसको गलत लगाते हैं, तो क्या होता है वो कैटरेज लाइन में सर्किट में आता ही नहीं और पानी ऊपर के ऊपर चला जाता है। सो यू हैव टू एंश्योर दैट ऑलवेज द वाटर विल फ्लो थ्रू दैट पर्टिकुलर कैटरेज। देन व्हाट यू हैव टू सी इज दैट द बेल्ट टेंशन। अगर आपका मशीन जैसा चल रहा है तो हो सकता है 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपका जो बेल्ट है वो लूज हो जाए, तो इसके लिए आपको बेल्ट को चेक करना है। अगर बहुत लूज हो गया तो आपको बेल्ट को बदलना है। अभी बेल्ट के बारे में ऐसा है अगर आप बेल्ट बदलना चाहते हो तो एक साथ पूरा सेट आपको बदलना है। ऐसा नहीं है कि मान लो चार बेल्ट है एचयू में तो 2 लूज हो गए तो 2 आप बदलोगे और 2 नहीं बदलोगे, क्या होगा वो 2 लूज निकाल के आप 2 नए डालोगे तो पूरा जो लोड है वो 2 बेल्ट पे आएगा और दूसरे जो बाकी के 2 है वो थोड़े बहुत तो लूज हुए रहेंगे, तो उससे क्या होगा आपका एचयू बराबर चलेगा नहीं और देयर विल बी अ स्लिपेज ऑफ द बेल्ट और आपका जो मोटर आरपीएम और एचयू का आरपीएम में फर्क आ जाएगा। So always whenever you are replacing a belt on any mechanical system, you have to replace them in one set also। अगर 4 बेल्ट है तो 4 बेल्ट एक साथ बदलने हैं, 2 बेल्ट है तो 2 एक बेल्ट एक साथ बदलने आपको। ऐसा नहीं कि 2 बदलेंगे और 2 ठीक है करके चलाएंगे। सो दिस थिंग यू शुड कीप इन माइंड। फिर क्या अगला पॉइंट क्या है कि आपका जो स्प्रे नोजल है कूलिंग टावर के, होता क्या है अगर वो पानी में अगर कोई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है तो वो स्प्रे नोजल चोक हो जाते हैं, तो आपको आपके बंदे को ऑपरेटर को या आपको ये देखना है कि आपके सब नोजल्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अगर नहीं चल रहे हैं तो देयर इज अ अरेंजमेंट, यू कैन रिमूव दैट पर्टिकुलर नोजल एंड गेट इट क्लीन एंड पुट इट बैक इनटू द ऑपरेशन, क्योंकि वहां पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होने से क्या होगा वहां से पानी बाहर आएगा नहीं वो नोजल से। अगर ऐसे मान लो 100 नोजल में से 20 नोजल या 25 नोजल बंद हो गए तो आपका कूलिंग टावर का एफिशिएंसी कुछ भी नहीं आएगा ऐसा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नोजल्स जो है वो ठीक होने चाहिए। और क्या दिन आपको अभी क्या होता है बहुत बार पानी में मट्टी आती है, अगर आपने देखा कॉर्पोरेशन का भी पानी आता है बारिश के सीजन में, सो इट इज ऑलवेज मिक्स विद द फाइन पार्टिकल्स ऑफ मिट्टी। तो
ये मिट्टी जो है वो कूलिंग टावर के बेसिन में, जो कूलिंग टावर का जो बेसिन है उसमें जमा हो जाती है. सो यू हैव टू पीरियडिकली क्लीन दैट पर्टिकुलर मड. Otherwise, what will happen? That mud will get carried out to the condenser and it will get settled into the condenser. अगर कंडेंसर में वो सेटल हो गया तो आपकी हीट ट्रांसफर कैपेसिटी हैम्पर हो जाएगी और आपका जो भी कंडेंसिंग प्रेशर है या एचपी ऑफ द मशीन है वो बढ़ जाएगा. तो आपको ये ख्याल रखना है. आपके जो भी सिस्टम में प्रेशर गेज और थर्मामीटर लगाए हुए हैं वो आपके ऑपरेशनल होने चाहिए. इनलेट पे लगाया होगा, आउटलेट पे लगाया, बिकॉज दैट विल गिव यू द करेक्ट आइडिया ऑफ व्हाट सिस्टम इज परफॉर्मिंग. अगर कोई गेज बंद है तो आपको फिर वो तय करना मुश्किल होगा कि मशीन क्या क्या इस पे चल रहा है. अगर वो गेज और प्रेशर गेज और थर्मामीटर सही है तो आपको मशीन में क्रॉस चेक करेंगे या उसका परफॉर्मेंस चेक करने में मदद हो जाएगी. और क्या होता है रूटीन मेंटेनेंस में, बहुत बार क्या होता है हम लोग को जो फिल्टर ड्रायर रहता है सर्किट का वो बदलना रहता है. तो वो टाइप पे क्या करना पड़ता है, हम लोग को मशीन को पंप डाउन करना पड़ता है. तो पंप डाउन करेंगे मतलब क्या है, कंडेंसर के आउटलेट के वॉल को बंद करेंगे और मशीन को चलाएंगे. तो क्या होगा, कंडेंसर के आउटलेट वॉल के उसके उस तरफ जो भी गैस है वो पूरा गैस सक्शन में आएगा कंप्रेसर में और वो कंप्रेस हो गए पूरा, हम लोग उसको कंडेंसर में ढकेल देंगे और उसके बाद कंप्रेसर का आउटलेट वाल्व भी बंद कर देंगे. मतलब क्या होगा, पूरा जो गैस है हमारा वो डिस्चार्ज साइड में या हाई साइड में हम लोग ट्रांसफर करेंगे और फिर वो मशीन का हम लोग ड्रायर जो भी है अगर बदलना है तो बदल सकते हैं. ओके क्योंकि क्या होता है शुरू में जब भी हम लोग मशीन को चलाते हैं तो हो सकता है बार बार वो ड्रायर चोक हो जाए. ओके सेकेंड बात क्या रहता है, अपने को रेफ्रिजरेंट कभी क्या होता है, नया नया मशीन है तो किधर ना किधर छोटा सा लीक हो सकता है. तो अपने को रेफ्रिजरेंट चार्ज करना पड़ता है. बड़ा अगर सिस्टम है 150 TR का तो आपने चार्ज करने के लिए पोर्ट अवेलेबल रहेगा, या तो कंप्रेसर पे चार्ज कर सकते हैं या इनलेट ऑफ द इवापोरेटर चार्ज कर सकेंगे वहां पे अगर आपने कोई वाल्व का प्रोविजन दिए. ओके तो लेकिन आप जब भी चार्ज करोगे तो आपने वो क्वांटिटी आपने मेंशन करके रखना है. ऐसा नहीं कि उठे और मशीन को चार्ज करते हैं. अगर एक प्रेशर कम हो रहा है या कुछ हो रहा है मशीन में तो आपको उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. जस्ट बाय पुटिंग द गैस इनटू सिस्टम विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम. तो आपने वो चीज को बराबर तरीके से देखना है. फिर सबसे इंपॉर्टेंट है और एक बात रहती है, पर्जिंग ऑफ नॉन कंडेंसेबल गैसेस. जब भी हमारे पास वाटर कूल कंडेंसर है तो वाटर कूल कंडेंसर पे वहां पे एक एंगल वॉल रहेगा जिससे हम लोग नॉन कंडेंसेबल गैस को पर्च कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं, आपको सिस्टम को बंद करना है, सिस्टम को बंद करेंगे चिलर को और कंडेंसर वाटर चलाएंगे. अगर कंडेंसर वाटर चलाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका इक्विलाइज प्रेशर जो है इट विल बी ओके, इट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू द एम्बिएंट टेम्परेचर. अगर आपका प्रेशर एम्बिएंट टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से ज्यादा दिख रहा है दैट मीन्स देयर आर नॉन कंडेंसेबल प्रेजेंट इन द सर्किट. सो दैट वॉल को जो है आपको ऐसा थोड़ा थोड़ा खोलोगे और वो पर्च करोगे गैस को. सो इट विल एंश्योर दैट all the non-condensable are flushed out. This system is not 100% foolproof, but still you can have a 90% efficiency system. और उससे आपका जो भी अगर सिस्टम में नॉन कंडेंसेबल है तो हम लोग उसको पर्च करके निकाल सकते हैं. अगर हम लोग जब भी पर्च करते हैं तो हो सकता है उसके साथ कोई गैस भी निकल जाए. तो अगर एक बार पूरा अगर नॉन कंडेंसेबल निकल गया तो हम लोग बाद में उसको रिचार्ज भी कर सकते हैं सिस्टम को. और ये पूरा जो है इसका हम लोग को रिकॉर्ड रखना है, जस्ट लाइक अ डॉक्टर जैसा आपका रिकॉर्ड रखता है कोई फाइल में, तो आपको कोई भी प्लांट के बारे में पूरा रिकॉर्ड रखना है. अभी जो हमने सीखा उसमें कोई किसी को डाउट है तो बोलिए, सो दैट वी कैन गो अहेड. हेलो सर कंडेन्सर कॉइल मध्ये कशाने प्रॉब्लेम येतो? कंडेंसर कॉइल में
डस्ट जी असते ना, डस्टमुळे प्रॉब्लेम होतो. कारण काय होतं, हमेशा कंडेंसर का फैन क्या करेगा, हवा खींचेगा, जो भी एटमॉस्फेयर की हवा जो है वो खींचेगा और कंडेंसर पे डालेगा या कंडेंसर से उठाएगा. तो क्या होगा, हवा में जो भी फ्लोटिंग पार्टिकल्स रहेंगे, मिट्टी रहेगी या धूल रहेगी, वो पूरी आके कंडेंसर पे जमा हो जाएगी. बराबर है. तो इसके लिए आपकी कंडेंसर कॉइल चोक हो जाएगी. कंडेंसर कॉइल अगर चोक हो जाएगी तो उसका हीट ट्रांसफर कैपेसिटी कम हो जाएगा और उससे क्या होगा, आपका डिस्चार्ज प्रेशर जो है सिस्टम का वो बढ़ जाएगा. ते सर कशाने क्लीन करायचं मग? ते हवेनेच क्लीन करायचं. कॉम्प्रेस्ड एयर से क्लीन करो. सबसे बेस्ट, अगर एयर कूल्ड कंडेंसर आपको अगर क्लीन करना है तो यू शुड यूज द वाटर यूज करना है. फिर देर आर सम लिक्विड सॉल्यूशन अवेलेबल इन द मार्केट. तो उसको आप अगर लगाओगे तो क्या होगी, आपकी जो फिल्स है वो थरली क्लीन हो जाएगी. हम लोग हवा मारेंगे तो क्या होगा, खाली जो डस्ट पार्टिकल निकल जाएंगे, लेकिन जो पार्टिकल आपके फिल्स को चिपके हुए वो निकाल नहीं पाएंगे. तो उसके लिए सॉल्यूशन आता है, उसको स्प्रे करके रखने का. तो दैट सॉल्यूशन विल क्लीन ऑल द फॉइल, जो भी आपके जो ये फिल्स है एल्यूमिनियम के कंडेंसर के ऊपर, वो सबको वो साफ कर देगा. बट यू हैव टू ऑलवेज सी दैट व्हेन यू आर पुटिंग that particular case, that is nothing but a chemical, but in a very much less concentrated solution रहता है. तो उसके बाद आपको सादा वाला पानी मार के उसको न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि अगर उसके ये रह गए वहां पे, अवशेष अगर वहां पे रह गए तो इट कैन डैमेज योर कंडेंसर कॉइल. सो क्लीनिंग ऑफ कंडेंसर कॉइल विथ केमिकल और विथ सोल्यूशन may be done maximum once in a 6 months, not every month. 6 महीने में आप एक बार करते हो तो ठीक है, बार बार करोगे तो क्या होगा, उसका असर वो फिन्स पे हो जाएगा और फिन्स आपके करोड़ हो जाएगा. बोलो और कोई क्वेश्चन? हॅलो, अजून काय प्रश्न आहेत का? हा बोला. कोण कोण आहे लाईन वर? मी आणि जिग्नेश आणि मिराज. हा, अजून काही प्रश्न? आतापर्यंत झालेल्या पोर्शन वर काही प्रश्न असेल तर विचारा, म्हणजे बरं पडेल. आजचा आपला टॉपिक बऱ्यापैकी झालेला आहे. नवीन टॉपिक घेण्यापेक्षा तुमच्या इथून मागचे काय प्रश्न असतील तर ते विचारा, आपण त्याच्यावर चर्चा करू, ते जास्त चांगलं राहील. आता फक्त आपलं रिपेअर्स, ट्रबल शूटिंग जे म्हणतो किंवा सर्व्हिसिंग, एवढाच एक पोर्शन राहिलेलं आहे. अजून काही प्रश्न आतापर्यंत झालेले याच्यावर काय असेल तर विचारा. सुबोध, हॅलो, सुबोध सर आहेत का लाईन वर? हॅलो सर, आवाज ब्रेक होतोय थोडा. माझा का? मी म्हटलं आजचा टॉपिक झालेला आहे, तर यांचा परीक्षेचं वगैरे काय नियोजन झालंय का, किंवा काय ऑफलाईन होणार आहे, ऑनलाईन होणार आहे काय? पण मग ते फायनल करून त्यांना सांगायला ना, कारण मे बी मला वाटतं माझं तर एकच हे राहिलेलं आहे बाकी. बरं का, एकच टॉपिक बाकी आहे, ट्रबल शूटिंग. हो का, आज नाही घेणार आहे का? मध्ये आज नाही घेणार आहे वाटतं. बर, नाही माझी पण ठीक नव्हती, पण म्हटलं जाऊ दे, होऊन जाईल ना. मलाही थोडासा त्रास आहे सर्दीचा, काल वॅक्सिन घेतलेलं आहे, थोडासा अंगात कणकण आहे, पण मग ऑफिसला आलोच आहे तर म्हटलं घेऊन टाकू, आहे की नाही. तर त्यांना म्हटलं मी आतापर्यंत काय शिकवलं त्यावर काय डाऊट्स असतील तर विचारा. त्यांना काही डाऊट्स नाहीत, म्हणजे शिकवलेलं सगळं समजलंय. हो ना रे स्वामीराज, बरोबर आहे ना? हॅलो, स्वामीराज पण गायब झाला का रे? हॅलो,
नाही सर, गोरे आहे. कुठे गेले? आहे ना? आहे. आतापर्यंत शिकवल्यावर काही प्रश्न आहेत का म्हटलं? नाही आहेत समजलं असं थोडेफार, काय आहे पण तर? ते लेक्चर हा. परत रिवाइज करायच्यात, मग मी विचारतो तुम्हाला. आधी मध्ये लेक्चरला बरं नव्हतो ना बरं मी. असं आहे. बरं 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 बरं. मग ते माहिती करा सगळे आणि हो. मग एक स्टेशन आपण असंच ठेवणार आहेत की सगळा मागचा जो काय आहे त्याचा रिव्ह्यू करूया, म्हणजे मग तुम्हाला बरं पडेल. कारण परीक्षेला शेवटी हे सगळं तुम्हाला परीक्षेला प्रेझेंट करायचंय, तर त्यावेळेला तुम्हाला ते चांगले मार्क्स पण मिळायला पाहिजेत काय, आणि नुसते मार्क्स नाही तर तुम्हाला जो समजला पाहिजे विषय, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. त्यामुळे जे काय असेल प्रश्न लिहून ठेवा. लेक्चर पाहून समजले चांगली गोष्ट आहे, नाही समजले तर परत विचारा. ओके, कारण आपण आता म्हणजे सेशनच्या एंड जवळ आलेलो आहोत. त्यामुळे मग नंतर मग तुम्हाला ते विचारणं कठीण होऊन जाईल. मे बी अजून 1 किंवा 2 लेक्चर्स असतील, सुबोध सर त्याप्रमाणे सांगतील तुम्हाला. ओके सुबोध सर, मग थांबूया का काय करूया? आजचं तर झालेलं आहे. फक्त ट्रबल शूटिंग राहिलेलं आहे माझं. ओके, आणि काय यांचे प्रश्न असतील तर मग ते आपण पुढच्या वेळेला घेऊ शकू. ठीक आहे. हम्म 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 हा, म्हणजे आता आता जे आहे, आता बघा 35 झाले, अजूनही तुम्हाला 1 वाजेपर्यंतचा वेळ आहे. सो जरी इथून मी डिस्कनेक्ट झालो तरी तुम्ही ते व्हिडिओ पाहून काय प्रश्न असतील ते लिहून ठेवा, जेणेकरून आपल्याला पुढच्या वेळेला ते घेता येतील. असं काय, आता इथून क्विट करू नका, तुमचं ते चालू ठेवा असं. ठीक, असं काय हरकत नाही. बरं. हम्म. 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 ठीक आहे मग. नो सर, काय नाही. ठीक आहे, मग आपण आता इथे थांबूया. पण तुम्ही सगळे व्हिडिओ पाहून घ्या सगळे सुरुवातीपासून, कारण कसं असतं कॉलेजमध्ये शिकवलेलं वेगळं असतं. कॉलेजमध्ये काय होतं, फक्त तेवढ्या पोर्शन पुरतं शिकवलं जातं किंवा परीक्षेसाठी शिकवलं. हे जे पर्टिक्युलर लेक्चर आहेत हे प्रोफेशनल आहेत. एखादं वाक्य असं असेल ना जे मध्ये मिस आउट होऊन जाईल, ते जर नसेल समजलं तुम्हाला, चांगलं काळजीपूर्वक ऐका, म्हणजे मग त्याचा अर्थ तुम्हाला कळेल. कारण हे सगळं जे काय आम्ही तुम्हाला जे काय नॉलेज डिलिव्हर करतोय, हे सगळं आम्ही अनुभवलेलं असतं. आम्हाला हे साईटवर प्रश्न आलेले असतात, ते आम्ही तुम्हाला रेडीमेड सोल्युशन देतोय. त्यामुळे एखादं वाक्य जरी स्किप झालं ना तरी महत्वाची माहिती तुमच्याकडून स्किप होऊ शकते. त्यामुळे लेक्चर जेव्हा तुम्ही ऐकताय तेव्हा प्रत्येक वाक्य तुम्हाला समजणं जास्त महत्वाचं आहे. नसेल समजलं तर आपण डिस्कस करू आणि ते समजावून देण्याचा प्रयत्न करू. असं ठीक आहे. तर मी पण रजा घेतो. ठीक आहे. ओके ओके. बाय सर.